So in today's class I'm starting with the cube root of unity. इसको जरा ध्यान से समझिएगा. Cube root of unity. Topic is cube root of unity. देखिए यहाँ मैंने वर्ड रूट्स लिखा है. तो पहले तो एक बात समझिए. अगर मैं आपसे कह दूं कि 8 का क्यूब रूट निकालिए, तो रियल नंबर में तो आप देखते हैं कि सर इसका जो है क्यूब रूट 2 ही आएगा. बट there will be some imaginary roots as well. So that is why we have more than one root in complex domain. Unity का मतलब क्या होता है? 1, यानी कि 1 का क्यूब रूट निकालना है. तो हमने इसको मान लिया x के बराबर. Now cubing both side, x cube is equals to 1. Can we write x cube minus 1 equals to 0? Now we can use the identity a cube minus b cube, which is x minus 1, x square plus x plus 1 equals to 0. Now compare x minus 1 equals to 0 or x square plus x plus 1 equals to 0. यहाँ से तो हमारे पास x equals to 1 आ गया. But from here, if I start solving by using discriminant method, I will be having x equals to minus 1 plus minus root 3 iota by 2. Now we have the notation. minus 1 plus root 3 iota by 2 को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से. एंड minus 1 minus root 3 iota by 2 इसको डिनोट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से. ये समझ में आया कैसे आया? क्योंकि यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. तो जब रूट्स लिख रहे होंगे तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3 एंड रूट माइनस 3 इज रूट 3 आयोटा. इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. तो हमारे पास क्या आया? दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अब एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखिएगा. हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज सेम एज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओमेगा आपका क्या था? माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2. नाउ द क्लियरली यू कैन से दैट अगर ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर क्या है? अगर आप देखें ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, है या नहीं है बेटा? या ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा. तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. प्लीज टेल मी बेटा, कैन वी से लाइक दैट? हमने लास्ट क्लास में कॉन्जुगेट भी पढ़ा था. अगर a प्लस आयोटा बी जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होता था? a माइनस आयोटा बी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट इज ओमेगा. नेक्स्ट वन इज since omega is a root of the equation x cube minus 1 equals to 0, so it will certainly satisfy it. अगर satisfy करेगा तो now see substitute here, so we will be having omega cube minus 1 equals to 0, so therefore omega cube is equals to 1. So this is the second property. Now third property is, now we can write omega into omega square is omega cube, which is 1. So we can say that both are multiplicative inverse of each other, so we can write 1 over omega is omega square. Is that okay beta? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir.
Now the fourth property is, now try to understand that we have the equation x cube minus 1 equals to 0. इसके रूट्स क्या आए थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. Now this in a cubic equation, suppose if I am writing cubic equation like this, you know that the sum of the roots, that is alpha plus beta plus gamma, is minus b over a. Now in this case 1 plus omega square क्या आएगा बेटा? 0. Because there is a no second degree term in this equation, we can write this way: 0x square 0x minus 1 equals to 0. I hope these properties are clear बेटा. Please do reply. Clear है बेटा सबको ये property? हाँ जी. Yes, sir. So now we'll be doing some questions from the JEE and कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे वो भी रहेंगे कि कैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हैंडल करेंगे. द क्वेश्चन नंबर 1 इज simplify या find the value of 1 plus omega square 1 plus omega raised to power 4 1 plus omega raised to power 8, and these are 2n factors. कितने फैक्टर्स हैं? 2n. इसको सिंप्लीफाई करना है. एक बात आराम से समझ लीजिए, ओमेगा क्यूब इज 1. So see how we'll handle this. What is omega raised to power 4? Can you tell me which is omega? Because omega raised to power 4 को आप लिख सकते हैं omega cube into omega, that is equal to omega. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Okay, and what you will say about omega raised to power 8? Omega raised to power 4 का square, and omega raised to power 4 is omega, so it is omega square. Now by looking at this pattern, so can we write this as 1 plus omega n factor तो इसके आ जाएंगे बेटा, and then multiply with 1 plus omega square 1 plus omega square and so on, n factors of this type. So we have this expression simplifies to 1 plus omega raised to power n into 1 plus omega square raised to power n. Now let us simplify it further, and we also studied that 1 plus omega square is 0. Now अगर ऐसा है तो let us simplify this further. तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? We can write 1 plus omega is equals to minus omega square, and 1 plus omega square we can write this as minus omega. Now substitute here, so what we'll get? Minus omega square raised to power n and minus omega raised to power n. So what we are getting finally? We are getting omega cube raised to power n, and omega cube is 1, so 1 raised to power n is 1. So the value of this expression is 1. I hope it is clear beta. Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay. Now we have a very good question again. See, the question is, if the equation x square minus x plus 1 equals to 0 having roots alpha and beta, the question is find the value of alpha raised to power 101 plus beta raised to power 107. ये निकालना है.
तो पहले तो हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन। इक्वेशन को लिख सकते हैं हम 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2। नाउ व्हाट इट बिकम 1 प्लस माइनस √3 iota by 2। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। अब यहाँ बच्चा कई बार गलती करता है, और लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करना। हमारे पास जब इक्वेशन थी x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके जो हमारे रूट्स थे वो क्या थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अगर इस इक्वेशन में मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, समझ में आ रही बात Yes, बेटा? sir. So therefore we can say that the roots of this equations are, if I take alpha is equals to minus omega and beta as minus omega square. Okay. Now what I need to find? I need to find alpha raised to power 101 plus beta raised to power 107. Now what is alpha? Minus omega raised to power 101 plus minus omega square raised to power 107. Okay, so we get minus omega 101 minus omega 214. Now अब क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो इसका ब्रेकअप बनाएंगे 3 के मल्टीपल में। तो इसके नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, हाँ जी, ओमेगा रेज टू पावर 213 इंटू ओमेगा। ओके, क्लियरली दिस इज 1 and this is also 1 multiple of 3, so we left with minus omega square minus omega। अब आपने क्या पढ़ रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया। क्वेश्चन है IIT जेई का क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ओमेगा is non-real cube root of unity The question is, and 1 plus omega raised to power 7 is equals to a plus omega b. The question is find a comma b. ये क्वेश्चन IIT जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो IIT जेई में जरूरी नहीं है मुश्किल क्वेश्चन ही आए, तो सिंपल है। देखिए 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताइए ज़रा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, 0, तो कितना आ गया, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 14। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज टू पावर 12 इज 1। नाउ 1 plus omega square is equals to 0. So minus omega square is 1 plus omega. So this expression is 1 plus omega. Now compare with a plus omega b. So what is a? A is also 1 and b is also 1. तो आंसर इज 1,1। अब ये देखिए, जरूरी नहीं है IIT जेई में मुश्किल क्वेश्चन ही आए, अब खुद देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है बेटा, अब बताइए। वी आर यूजिंग द डायरेक्ट रिजल्ट, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्लियर है सबको बेटा सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes. Now again we have a very good question from the IIT JEE question. Question is, find the least positive integral values
integral value of n if 1 plus omega square raised to power n is equals to 1 plus omega raised to power 4 whole to the power n. Again this question was asked in IIT JEE. तो देखिए कैसे करेंगे यार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा माइनस ओमेगा ये बात क्लियर है बेटा प्लीज टेल मी यस और ये किसके बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n so finally what we are getting here from here so we can write this as omega raised to power n is equal to omega raised to power 2n so omega raised to power n is equals to 1 so what is the least value for which it is 1 so n is 3 is that okay clear है बेटा क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 is that okay please do reply clear है बेटा Yes, sir. okay now we have a very good question again the question is prove that x raised to power 6 plus 4x raised to power 5 plus 3x raised to power 4 plus 2x cube plus x plus 1 is divisible by x minus omega and x minus omega square. देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली पोलिनोमियल्स में फिट होगा अगर मान लीजिए इस पोलिनोमियल को मैं पी एक्स लिख लूँ ऐसे x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस 1 नाउ अगर मुझे दिखाना कि ये x माइनस डब्लू सॉरी x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर से डिविजिबल है तो p एट ओमेगा 0 आना चाहिए तो सब्स्टिट्यूट ओमेगा ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 4 ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 3 ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा प्लस 1 now what is omega raised to power 6 that is 1 now please tell me what is 4 omega raised to power 5 this is omega square this is omega and omega cube is 1 is that okay please tell me now see what we are getting 4 omega square plus 4 omega plus 4 we can take 4 common omega square plus omega plus 1 ये किसके बराबर होता है 0 is that okay so therefore x minus omega x minus omega is a factor एक चीज और आपको बता देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग ध्यान से समझिएगा अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसके कोफिशिएंट्स रियल है दैट इज रियल कोफिशिएंट्स अगर इसका रूट आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस आयोटा आएगा यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स अगर ये कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है तो डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर के लिए प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है तो इट इज ऑब्वियस तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल क्लियर हो गया बेटा सबको हाँ जी बेटा यस Yes, sir. okay now we have another question the question is find the roots of the equation x raised to power 4 plus x square plus 1 equals to 0 in terms of omega ओमेगा की टर्म में निकालने हैं तो देखिए निकालेंगे क्या करते हैं क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक काम कर लिए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, सो वी हैव वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते थे? प्लीज टेल मी व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. सो वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो एक तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा। अब एक बात बताइएगा जरा, ओमेगा इज सेम एज ओमेगा रेज टू 4, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? सो द रूट्स आर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस माइनस ओमेगा। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी। Yes, sir. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। फाइंड द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, फाइंड द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल having roots 2 omega square 3 plus 4 omega and 3 plus 4 omega square 5 minus omega square। ये रूट्स हैं, तो जरा यहाँ समझने की कोशिश करना। कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। अगर 2 ओमेगा स्क्वायर रूट होगा तो फिर 2 ओमेगा भी होगा। क्यों होगा बताइए? बिकॉज ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होता है? ओमेगा। इज दैट ओके? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर Yes, sir. इन कॉन्जुगेट पेयर। नाउ अगर आप यहाँ से देखें, इसका कॉन्जुगेट ये रहा। अगर 3 प्लस 4 ओमेगा रूट है, वो तो दे ही रखा है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है? 3 प्लस 4 ओमेगा का कॉन्जुगेट अगर मैं लूँ तो आएगा 3 प्लस 4 ओमेगा कॉन्जुगेट, दैट इज 3 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो एक बात Yes. बताइएगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक रूट ये है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से कितनी डिग्री आएगी? 2 डिग्री यहाँ से आएगी, 2 डिग्री यहाँ से आएगी। यानी कि उस पॉलिनोमियल के फैक्टर ऐसे बनेंगे, x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 ओमेगा, देन x माइनस 3 माइनस 4 ओमेगा, x माइनस 3 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। अब बचा हमारे पास लास्ट वन, ये वाला फैक्टर। इसके बारे में क्या कहेंगे? कैन वी राइट दिस एज माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर है? -1 के। ये तो रियल ही है, तो एक फैक्टर यही आएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर। तो वी हैव द फैक्टर x माइनस 6। तो क्या डिग्री आ रही है इसकी बताइए जरा? 5 डिग्री। सो द लीस्ट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. लीस्ट डिग्री इज 5। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से ही निपटाना होता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको सोल्व करते हैं, समझिएगा। द क्वेश्चन इज, if omega and omega square are non-real cube roots of unity and they satisfy this relation 1 upon a plus omega plus 1 upon b plus omega plus 1 upon c plus omega is equals to 2 omega square and 1 over a plus omega square plus 1 over b plus omega square plus 1 over c plus omega square is equals to 2 omega. Then the question is, find the value of 1 over a plus 1 plus 1 over b plus 1 plus 1 over c plus 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, पहले समझने की कोशिश करना।
अगर आप यहाँ से देखें, if try to see this part, can we write this as 2 by omega? Please tell me, because omega square into omega is 1, so they are multiplicative inverse of each other, and I can write this as 2 by omega square. तो यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप जरा ध्यान से देखें, if I consider the equation of this type, that is 1 over a plus x 1 over b plus x plus 1 over c plus x is equal to 2 by x, और इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? प्लीज टेल मी, both omega and omega square satisfy this Yes, equation? sir. Yes, sir. So now let us simplify this equation and multiply. तो इसका हमें तीसरा रूट ढूंढना है, तो तीसरा रूट भी ढूंढेंगे। तो हम अगर यहाँ से एलसीएम लेके इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस 2abc इक्वल्स टू 0। अब एक काम कर लेते हैं, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका एक रूट और होगा, तो हमने मान लिया इसका जो थर्ड रूट है वो गामा है, तो सम ऑफ द रूट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा कितना आएगा? 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। सो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, और हम क्या जानते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, तो गामा किसके बराबर आ गया? 1 के। इज दैट ओके? अगर गामा 1 के बराबर आ गया है तो गामा भी तो इस इक्वेशन का रूट होगा बेटा एक। प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो गामा को 1 डालेंगे, Yes, sir. सो दैट इज x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो 1 अपॉन a प्लस 1, 1 अपॉन सॉरी प्लस में आएगा प्लस b प्लस 1 प्लस 1 ओवर c प्लस 1 is equals to 2. So value of this expression is 2. I hope it is clear beta. Please do reply. Clear है सबको? Yes, sir. Okay. अब जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट अस चेंज सम कैटेगरीज। अगर मैं आपसे कह दूं यार -1 का क्यूब रूट क्या आएगा? -1 का क्यूब रूट निकालना है, तो हमने इसको मान लिया x के बराबर। सो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, x क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अगर आपको याद हो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, x क्यूब इक्वल्स टू 1, और इसके जो रूट्स आए थे वो क्या आए थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1। कैन वी राइट दिस इक्वेशन दिस वे? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लूँ कि लेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई? वाई क्यूब इक्वल्स टू 1, तो y किसके बराबर आएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? अब क्योंकि हमारे पास x किसके बराबर है? -y के, तो x किसके बराबर आ जाएगा फिर? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी बेटा, प्लीज डू Yes, रिप्लाई। sir. अब अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है कि सोल्व दिस इक्वेशन, x क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आयोटा। Now how I will handle this equation? In terms of omega, I want to give the answer of this. 8 आयोटा है तो पहले इसको क्यूब में ब्रेक करते हैं। तो आप ये बताइए आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग दिस? So can we write this as minus of 8 iota cube? Please tell me. Can we write this way? Please do reply. Yes, sir. Can I write this as minus 2 iota whole cube is equal to x cube? Is that okay? Can I write this as x by minus 2 iota whole cube is equals to 1? Please do reply. हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, Yes, sir. अगर मैं x माइनस 2 आयोटा x अपॉन -2 आयोटा को y ले लूँ तो y क्यूब इज इक्वल्स टू 1,
तो इसके रूट्स क्या आते थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इज दैट ओके? So x by minus 2 iota is equals to 1 omega omega square. So what is x? X is minus 2 iota omega minus 2 iota omega square. I hope it is clear. Clear है बेटा? हाँ जी. Yes, sir. Now we have the question from IIT JEE. The question is, solve the equation x minus 1 whole cube plus 8 equals to 0 and कहता find its roots in terms of omega. This question was asked in IIT JEE. कर लेंगे इसको भी. देखिए x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे? -8. -8 को क्या लिख लेंगे? -2 का होल क्यूब. प्लीज टेल मी, कैन वी राइट दिस एज x माइनस अपॉन -2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. प्लीज टेल मी. तो x माइनस अपॉन -2 को मैंने ले लिया y, तो वी हैव y क्यूब इज इक्वल्स टू 1. तो इसके रूट्स क्या आएंगे बेटा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इज दैट ओके? So x minus 1 over minus 2 is equal to 1 omega omega square. तो x minus 1 is equals to minus 2. तो x कितना आ गया? -1. x minus 1 over minus 2 is equals to omega. तो यहाँ से x आ जाएगा -2 ओमेगा प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा x is equals to -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए मैं शुरू से सिर्फ एक ही इक्वेशन को ही यूज कर रहा हूं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन निकाला. नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट. Result is, we'll establish the proof as well. 1 plus omega raised to power n omega raised to power 2n. ये कहता है कि इट इज कमिंग आउट टू बी 0 अगर n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, एंड इट इज 3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसका मैं पहले प्रूफ दे रहा हूं, आराम से समझिएगा. एक काम कर लेते हैं, पहले n को 3 का मल्टीपल ले लेते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 के ओमेगा रेज टू पावर 6 के. इज दैट ओके? कैन वी राइट दिस एज 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर के प्लस ओमेगा रेज टू पावर 6 रेज टू पावर के. व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1. ओमेगा रेज टू पावर 6 is also 1, so answer is 3. So you can clearly see when it is a multiple of this, then we are getting. Now the next is n is not 3k. अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या सोच सकते हैं? n या तो 3k प्लस 1 टाइप का नंबर होगा या फिर 3k प्लस 2 टाइप का होगा, क्योंकि आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो बेसिकली क्या कितनी कैटेगरी होती है नंबर्स की? When you divide by 3, either remainder is 0, remainder is 1 or remainder is 2. Are you getting this बेटा? Please do reply. बताया था ना ये? हाँ जी. Yes, sir. तो सपोज मैं n को 3k प्लस 1 ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या था? 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर क्या था? n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n. तो n की जगह वैल्यू डाल दीजिए. 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर, when we take n is 3k plus 1, that is 6k plus 2. Is that okay? Please do reply. Can we write this as 1 plus omega raised to power 3k into omega plus omega raised to power 6k into omega square. 3k वाला कितना आएगा और 6k वाला ये 1 आ जाएगा. So we'll obtain 1 plus omega square, and which is 0. I hope it is clear beta. Please do reply.
हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So it is an important result. Now I will be solving some question based on this result. I hope the proof part is okay. Clear है सबको proof अच्छे से? हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कैसे आ रहा है. क्वेश्चन ऐसे है कि if n belongs to the natural number and n is 2k minus 1, n is not 3k, यानी कि n 3 का मल्टीपल नहीं है. कहता then prove that x plus 1 whole to the power n minus x raised to power n minus 1 is divisible by x cube plus x square plus x. इससे डिविजिबल है. अब n नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. n नेचुरल नंबर है तो वी आई एम राइट दिस एज अ पॉलिनोमियल px x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1. नाउ अब जिससे डिवाइड करना जरा उसके बारे में सोचते हैं. x cube plus x square plus 1. कैन वी टेक x कॉमन? इसके रूट्स क्या हैं इस इक्वेशन के? जीरोस, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो वी कैन फैक्टराइज दिस एज x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो पहले पी एट जीरो देखते हैं. अगर x की जगह जीरो डालेंगे तो 1 रेज टू पावर n माइनस जीरो माइनस 1 विच इज जीरो. तो डेफिनेटली नाउ नेक्स्ट बाय ओमेगा we have omega plus 1 whole to the power n minus omega raised to power n minus 1. Now omega plus 1 is minus omega square. Sorry, like this. We can write this way, minus omega raised to power 2n. We can take minus sign common. Now please tell me in the question clearly n is not 3k. और हमने रिजल्ट क्या बताया था कि जब n 3k नहीं है तो इसका वैल्यू क्या है? 0. इज दैट ओके बेटा? सो दिस इज 0. Similarly we can prove that p of omega square is also 0. तो ये इसके हर एक फैक्टर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे डिविजिबल हो गया. सो क्लियरली, वैसे किसी वन ऑफ दम से भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी. क्लियरली we can say that x cube plus x square plus x divides px. I hope this solution is clear beta. Please do reply. हाँ जी बेटा. क्वेश्चन है एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा. इफ 3 minus 3 omega plus 2 omega square whole to the power 4n plus 3 plus 2 plus 3 omega minus 3 omega square whole to the power 4n plus 3 plus minus 3 plus 2 omega plus 3 omega square whole to the power 4n plus 3 is equals to 0, then find the possible values of n. Find the possible values of n where n belongs to the natural number. ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या करना पड़ेगा. अगर आप इस वाले ब्रैकेट को देखें और समझने की कोशिश करना, अगली वाली ब्रैकेट कैसे आ रही है इससे. अगर इस वाली ब्रैकेट को मैं हर एक नंबर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा. ये 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा. 2 देखिए ये आ रहा है. माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? प्लीज डू रिप्लाई.
हाँ जी। Yes, sir. और क्या आ रहा है साथ में, और अगर मान लीजिए इसको हम 3 ओमेगा भी आ रहा है, -3 ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है, और 2 ओमेगा क्यूब 2 हो जाएगा, तो ये यानी कि पूरी ब्रैकेट आ रही है। अगर अब आप नेक्स्ट वाले इसको देखें, अगर इस वाली ब्रैकेट को मैं अब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो वी आर गेटिंग दिस ब्रैकेट। ध्यान से देखिए, 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा क्यूब आएगा -3, so we are getting these two terms. Then we Yes, have sir. 2 omega raised to power 4, omega raised to power 4 is omega. So तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा ले लूँ, लेट माई कॉम्प्लेक्स नंबर a is 3 minus 3 omega plus 2 omega square. So the next over number is a omega, which is equal to 2 plus 3 omega minus 3 omega square, and the next number is a omega square. Are you getting this? Please tell me. ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ जी। तो क्वेश्चन कैसे ब्रेकअप हो गया? पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा a रेज टू पावर 4n प्लस 3, दूसरा प्लस a ओमेगा रेज टू पावर 4n प्लस 3 प्लस a ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में से a रेज टू पावर 4n प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। तो 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4n प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 8n प्लस 6 is equals to 0. So without loss of generality, I should take a raised to power 4n plus 3 is not equals to 0. Because if it is 0, तो ये यही 0 होगा, तो then nothing to prove. Okay, so we are looking for the values. So we can write this as 1 plus, can we write this as omega cube आ रहा है, that is omega raised to power 4n into omega cube, omega raised to power 8n into omega raised to power 6 equals to 0. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा। तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 की पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 होल टू द पावर n. What is omega raised to power 4? Please tell me. Omega. And what is omega raised to power 8? Omega square. अब आप बताइए ये कब 0 होता था, आप ही बताइए. That is n should not be a multiple of 3k. Is that okay? आंसर आ गया? प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी। Yes. आज ही क्लास Yes, में sir. रिजल्ट करा था कि इट विल बी 0. ये देखिए जब n 3 का मल्टीपल नहीं होगा. दिख रहा है साफ साफ? हाँ जी। Yes, अब कुछ sir. अब इसकी कुछ एप्लीकेशन कराते हैं, वो भी देखिएगा. ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है वाला पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट a cube minus b cube is equals to a minus b omega and a minus b omega square, where omega is a cube root of unity. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं यार? सी व्हाट आई विल डू, लेट a cube minus b cube is equals to 0. तो a cube is equals to b cube. We can write a by b whole cube is equals to 1. और आप जानते हैं कि ऐसे इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं, आप ही बताइए जरा. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इज दैट ओके? सो आई कैन से दैट a by b is equals to either 1 omega omega square. Is that okay? So a is equals to b or b omega or b omega square. Now the factors are a minus b omega and a minus b omega square. Proved beta? Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir.
लॉजिकल है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट a cube plus b cube is equals to a plus b omega a plus b omega स्क्वायर। वैसे तो ऊपर वाले से आ जाना चाहिए, यहाँ जहाँ पे भी b है, b को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस b से। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, a plus b ओमेगा एंड a plus b ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? आ सकता ना, या फिर सेम तरीका है, लेटिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो we will be writing a cube is equals to minus b cube. We can write minus a by b whole cube is equals to 1, and you know that its roots are 1 omega square. So we can write minus a by b is equals to 1 omega square. So we can write a is equals to minus b omega minus b omega square. So therefore factors are a plus b omega and a plus b omega square. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो आपने देखा कि हमने कितना इजीली से इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू फैक्टराइज सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में और अच्छे से आ जाएगी। क्वेश्चन है, प्रूव दैट a plus b omega plus c omega square whole cube plus a plus b omega square plus c omega cube is equals to 2a minus b minus c, 2b minus a minus c and 2c minus a minus b. तो पहले इसको एस्टेब्लिश करते हैं, फिर दूसरा इसी के अंदर पार्ट भी है कि इफ a plus b plus c is 0, then prove that a plus b omega plus c omega square whole cube plus a plus b omega square plus c omega whole cube is equal to 27 times of abc. एक काम करते हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक को p ले लेते हैं और एक को q ले लेते हैं, ले सकते हैं। सो वी हैव p क्यूब प्लस q क्यूब। याद करिए इसके फैक्टराइजेशन, अब हमने अभी अभी क्या बताया था, p प्लस q बताया था, और p प्लस ओमेगा q, प्लीज टेल मी, एंड p प्लस ओमेगा स्क्वायर q। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, बताया था ये? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes. तो यार वैल्यू डालो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, मल्टीप्लाई विद another bracket is a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। q को आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब, कितना आ जाएगा, बी ओमेगा क्यूब इज b प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। देन नेक्स्ट व्हाट विल हैव, नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए अगेन p प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर। तो p हमारा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा a ओमेगा स्क्वायर, एंड देन ओमेगा रेज टू पावर 4 is omega, so we have b omega and then c. Is that okay? Please tell me. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई।
ये बात क्लियर हुई सबको? जल्दी से बताइए। Yes. अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने का तरीका देख लीजिएगा। बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस ए, तो 2a आ गया पहली ब्रैकेट में, आ गया 2a। ओके अगर इसमें से b कॉमन लूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो माइनस बी आ जाएगा। प्लीज टेल मी। एंड सी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा, ये कितना आएगा? -c। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ओके अब अगली ब्रैकेट को कैसे हम वो करेंगे, सिंप्लीफाई। जरा ध्यान से देखिएगा। एक टर्म तो आ गई आपके पास a प्लस बी, आ गई a प्लस बी। हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे, और बी ओमेगा प्लस ए ओमेगा, यहाँ से क्या हल होगा, समझने की कोशिश करिए इसको कैसे करेंगे इसको। यहाँ से आएगा a प्लस बी इंटू ओमेगा, आएगा ये, और a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं आ रहा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। हमारे पास आ रहा था यहाँ पे a प्लस बी, एक तो ठीक है। पहले ओमेगा वाली टर्म देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी ओमेगा, ये आ रहा बेटा, और प्लस 2c ओमेगा स्क्वायर, ये आ रहा है ना? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके अगर मान लीजिए इन दो टर्म्स को मैं a प्लस बी कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, इट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। प्लीज टेल मी, आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. तो ये वाली जो टर्म है मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2c ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? ये वाली टर्म आएगी? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. Yeah. अगली वाली टर्म को भी जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। वी हैव a प्लस सी, ओके, एंड देन नेक्स्ट प्लस 2b ओमेगा, एंड यहाँ से आएगा a प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ओके Yes, sir. इसमें और इसमें मैं इन दोनों टर्म में a प्लस सी कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास आएगा a प्लस सी इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? माइनस ओमेगा, Yes, sir. तो माइनस a ओमेगा माइनस सी ओमेगा और प्लस 2b ओमेगा। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब अगर इन टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो 2c माइनस ए माइनस बी, इस वाली ब्रैकेट से यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव 2b माइनस ए माइनस सी, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इज 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो देखिए हो गया, प्लीज टेल मी बेटा, हो गया प्रूव? हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है?
सेकंड पार्ट, a प्लस बी प्लस सी 0। अब एक बात है, ये तो बड़ा सिंपल है, यहीं से हो जाएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो माइनस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, तो ये एक्सप्रेशन कितना, पहली वाली ब्रैकेट क्या आ जाएगी? 3a। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। और यहां से माइनस a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? b के। ये ब्रैकेट किसके बराबर आ जाएगी? 3b। और क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, दिस ब्रैकेट इज 3c। सो नाउ मल्टीप्लाई देम, तो कितना आ जाएगा? 27 abc। इज दैट ओके? क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बेटा। Yes, sir. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन बेटा। हाँ जी। Yes, sir. तो ये पूरा पैकेज आपका जो था, पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे था आज का पूरा क्लास। तो आई विल बी शेयरिंग इट्स वीडियो टुडे। सो एक बार दोबारा भी अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो अभी 11th क्लास वालों की ये क्लास ख़त्म हो गई बेटा। तो नाउ विल बी टेकिंग क्लास ऑफ 12th क्लास आफ्टर 5 मिनट ब्रेक। सो अभी मैं आई एम लिविंग द क्लास, सो आई विल शेयरिंग द लिंक अगेन। ओके, बाय एवरीवन। Okay, sir. Thank you, sir.